Welcome to all of you once again in new session. In previous sessions, we have done numericals on resistance and resistivity. And in this session, we are going to discuss now numericals based on combination of resistors. These resistors will be in series combination, in parallel combination, and in mixed combination. And you know, the questions on series combination, parallel combination, and combined means complex combination are very, very important. And these questions are asked in board exam also. Question means numericals. Numericals, here we are going to solve numericals. So numericals are very, very important. Here you will learn that how to draw circuit diagram, how to get current in the series and parallel, okay, and how to get the potential difference across series combination and parallel combination too, right? So now let's start the session, and do note down these questions in notebook, and try to make some new questions from the given questions. And one humble request, continue to save water for generations to come, because we always earn, okay, we learn to earn, but we should learn to save also, save natural resources, okay. So our purpose should not be only to earn money, okay. If we want to earn money only, then it is of no use, okay. Education का कोई purpose नहीं रह जाता है, okay. So keeping in mind that we have to save water, now let's start the session. Yes, welcome to all of you once again in your session. In previous session, if we try to recall, in previous two sessions, we have done the numericals on resistance and resistivity. Resistance और resistivity के ऊपर हमने कुछ numericals किए थे, है ना? And I'm sure all of you must have done these numericals in your notebook also. And you are going to get good marks in board exam also, right? तो प्रैक्टिस थोड़ी आपको करते रहना पड़ेगा. तो इस तरह के और क्वेश्चंस करिए. And I told you how can we get another questions from the given question. एक दिए गए क्वेश्चन से हम कैसे अलग से 2-3 क्वेश्चन नए बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हमने आपको दी थी. आई एम श्योर दिस वे यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स एंड नॉलेज. दोनों में हमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. तो आज के सेशन में क्या करने जा रहे हैं? इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन यस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. जब रेजिस्टर्स को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है, इन सीरीज, इन पैरेलल एंड देन सीरीज एंड पैरेलल बोथ, देन हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड हाउ टू फाइंड करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. Or if current is given, resistance is given, how can we find potential difference across the ends of the resistors? So these kind of numericals will be done in coming 2-3 sessions. And ये जो numericals हैं, आप इसको मान लीजिए 100% important मान के चलेंगे, because in board very simple questions based on combinations are asked. So we shall be doing some questions which have been asked in previous year board exams. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. एंड इसमें जो फार्मूले हम यूज करेंगे वो आपको मालूम ही है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. RS is equal to R1 plus R2. This is for series combination equivalent resistance. And RP equivalent resistance when two resistors are connected in parallel. ये दो रेजिस्टर्स के लिए फार्मूला होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. अगर हमको 3 रेजिस्टर्स दिए हैं तो 2 रेजिस्टर्स दिए हैं तो ऑलवेज यूज दिस फार्मूला बिकॉज इट इज इजी टू यूज. इसमें टाइम भी बचता है एंड यू गेट द आंसर क्विकली. इफ यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स तो फार्मूला ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो ये जो फार्मूला है दिस कैन नॉट बी यूज फॉर 3 रेजिस्टर्स. ओके, तो 3 होंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 होंगे तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे. उसके बाद में हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R. I इज इक्वल टू V अपॉन R और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I R. एंड हमें ये भी मालूम है, दिस वी हैव डिस्कस दैट सेम अमाउंट ऑफ करंट
it passes through each resistor connected in series. And potential difference across each resistor in series is different, है ना. और पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये देखिए R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, R1 R2. तो इसमें करंट भी दोनों रेजिस्टर्स में क्या होगा, डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस वो हमारा जो है दैट इज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, बट करंट क्या होता है, ये डिफरेंट होता है ना. ये सब हमने पैरेलल थ्योरी की सेशन में कर लिया है. तो आज हम करेंगे इनका एप्लीकेशन. तो वी आर गोइंग टू यूज आवर नॉलेज टुडे, मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई द नॉलेज गेन इन प्रीवियस सेशंस. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट numerical. Now first question is, if three resistors each of 4 ohm, so three resistors are there, each is of 4 ohm, are connected in different ways. Find possible values of equivalent resistances which we can get combining all three together. तीनों को अलग अलग किस तरीके से कंबाइन करें कि उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर केस में डिफरेंट आए, है ना. व्हाट आर द थ्री पॉसिबल वेज टू कंबाइन दीस थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ohm. ठीक है, तो इसको हमें करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे कि हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर देयर, 3. तो पहला रेजिस्टर R1 हो गया, दिस इज 4 ohm. R2 दिस इज आल्सो ऑफ 4 ohm, एंड R3 इट इज आल्सो ऑफ 4 ohm. इनको हमें कंबाइन करना है, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है. एंड हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस. तो यहां लिख देंगे टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको माइंड में आ रहा होगा तो कौन सा क्या आता है, सबसे पहले हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इनको. तो द फर्स्ट एंड सिंपल वे इज टू कनेक्ट देम इन सीरीज. यस, तो तीनों को हम सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर दें. तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, है ना. तो R1 R2 R3 हो गया. यस, एक तो हमारा मेथड हो गया, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. सेकेंड आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो दूसरा हमने जो मेथड पढ़ा था दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना. दूसरा क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो तीनों को हम पैरेलल में कैसे कंबाइन करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, अनदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट. ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे. तो देखिए 3 रेजिस्टर्स आर देयर. तो हमारा एक रेजिस्टर ये हो गया R1, second is R2 and the third is R3. One end of each, देखिए ये हमने यहाँ कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया, and here connected this. So this is one common point, this is another common point. So this is R1, R2 and R3. ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. 2 हो गए. इसके बाद में थर्ड कैसे करेंगे, है ना. सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया. तो जब थर्ड क्या होगा, हम उसमें क्या करेंगे, एक हम सीरीज में ले लें, 2 को पैरेलल में ले लें. ठीक है ना, ये पॉसिबल है. तो एक हम पैरेलल, एक सीरीज में होगा और 2 पैरेलल में होंगे. तो देखिए एक हमारा ये सीरीज में हो गया एंड बाकी 2 रेजिस्टर्स हैं, दे विल बी इन पैरेलल दिस वे. दिस इज R1, दिस इज R2. Yes, this is R2, this is R3 and this is R1. And each resistor R1, R2 and R3, each is of how much? 4 ohm. Now we can solve the question very easily. Okay, now you can start doing in your notebook first. So now let's start. तो first शुरू करते हैं. R1, R2, R3 are in series. तो सबसे पहले हम लिखेंगे when connected in series. जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, है ना. When connected in series, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 and it will be how much? कितना होगा ये देखिए, तो R1 is 4, R2 is also 4, R3 is also 4. So it will be 4 plus 4 plus 4 and here it will be how much? 12 ohm. So equivalent resistance in first case when they are connected in series is 12 ohm. So here 12 ohm is greater than each resistor here. It is 4 ohm and here it is 12 ohm. तो हमें मालूम है कि जब ये हमने किया हुआ है, this is again important question. So when resistors are connected in series, then equivalent resistance is always greater than the highest resistor used in the circuit. तो देखिए 12 ohm is greater than 4. तो ये हमारा आंसर एकदम ठीक है. After that, we have to find out the equivalent resistance in second case. Now do it. I am going to rub this. So now second case when connected in parallel. So here you can see these are connected in parallel. And in parallel combination में क्या होता है? Current is divided into different parts. According to the number of resistors, current is divided. Here 3 resistors are there. So current will be divided into 3 parts. है ना? I1, I2, I3. जो current आ रहा है यहाँ पर, यहाँ I current है. It is divided into 3 parts. But what remains same? Potential difference across each resistor remains same. This you have to always remember. So now find equivalent resistance. तो यहाँ हो जाएगा 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So here find out quickly here. So it is 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4. So what is the answer here? कितना आंसर आया यहाँ पर? जल्दी से देखेंगे, है ना? तो आंसर इज हियर 1 upon Rp. So 1 to 3, so 3 upon 4 ohm. But is it complete answer? No. You have to get Rp and it is 1 upon Rp. ये रेसिप्रोकल है ना? तो therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा? Rp will be equal to 4 upon 3. So now equivalent resistance is here 4 upon 3. And here its value is कितनी आती है इसकी वैल्यू देखिए. This is Rp is equal to 1.33 ohm. ठीक है. तो equivalent resistance is here 1.33 ohm and this equivalent resistance is less than 4 ohm. और parallel combination में यही होता है कि equivalent resistance is always, word always is there. It is always smaller than the smallest resistance used in the circuit here. So Rp is less than 4. So here this is the second answer. ठीक है. तो आंसर को आप बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते हैं? इसको बॉक्स में बना सकते हैं, है ना? तो एग्जामिनर को जल्दी से आंसर आपको दिख भी जाते हैं and then you get mark quickly. Okay? So ये हो गया हमारा. After that दोनों में अब now we have to get the third result. Now 3 resistors are there. How these 3 can be connected different from these 2 circuits. Okay. So now next point. So do it. So now in this case, when one in series and 2 are in parallel. देखिए ये 2 parallel में है और एक इसमें है series में. तो इस केस में कैसे फाइंड करेंगे? Yes, how many of you have done? Yes, most of you have done it. Okay. चलिए इसको हम भी सॉल्व कर देते हैं बोर्ड पर. नो, तो देखिए इसमें R2 and R3 are in parallel. So first of all we shall find out the equivalent resistance of R2 and R3. तो पहले हम फाइंड करेंगे since R2 and R3 are in parallel. So therefore equivalent resistance कितना हो जाएगा? Rp will be equal to R2 into R3 upon R2 plus R3. So it will be here how much? 4 ohm क्या ना each resistor. So this will be 4 into 4 upon 4 plus 4. It will be 16 upon 8. It is equal to 2 ohm. तो देखिए ये जो पैरेलल में है इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इट इज 2 ओम. नाउ
ये सीरीज में है, तो देखिए कैसे हो जाएगा इसको। तो ये इसका डायग्राम आ जाएगा, दिस इज इन R1 सीरीज एंड साथ में ये आ गया हमारा RP। तो ना R1 एंड RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू, नाउ बोथ आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में आ गए, है ना। तो थोड़ा डायग्राम नीचे चला गया, तो वी कैन ड्रॉ हियर, दिस इज R1 and this is RP. So now R1 and RP both are in series. So now we have to find out the equivalent resistance of these two. So now R1 and RP are in series. Therefore, equivalent resistance in series हो जाएगा, this is R1 plus RP, and it will be how much? R1 is 4 and RP कितना है हमारा 2, so it is here 6 ohm. तो हमारा जो थर्ड आंसर आ गया that is 6 ohm resistance. Yes, तो ये हमारे 3 कॉम्बिनेशन हो गए. Is there any other combination? क्या हम इसको और किसी अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? Just think of it. हमने आपको 3 बताया है. Can there be another combination? Yes, है ना. तो निहारिका इज शोइंग मी द डायग्राम कि सर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है ना. इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम करेंगे फोर्थ वाला डायग्राम व्हिच हैज बीन गिवन टू मी बाय निहारिका. तो सॉल्व इट, नोट डाउन. सो नाउ थर्ड डायग्राम व्हिच हैज बीन गिवन बाय निहारिका. तो इसमें क्या होगा, 2 सीरीज में है और एक पैरेलल है. इससे पहले 2 पैरेलल थे, एक सीरीज था, नाउ उल्टा कर दिया हमने ना. 2 आर इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल. तो देखिए सर्किट डायग्राम कैसे होगा. यस, ओके. सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2. ये हो गया R1, दिस इज R2. दीज आर इन सीरीज. अब इसके साथ में हमें पैरेलल बनाना है. तो देखिए ये हमारा आ गया, थर्ड वन इज लेफ्ट, तो ये हमने थर्ड वन बना दिया, दिस इज R3, दिस इज इन पैरेलल नाउ. ये हमारा नया कॉम्बिनेशन मिल गया. तो नाउ करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. ये देखिए इधर जाएगा करंट एंड दिस विल बी गोइंग टू दिस साइड. सो I करंट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू अगेन 2 पार्ट्स. दिस इज I1 एंड दिस इज I2. यस, R1 एंड R2 आर इन सीरीज एंड R3 ये इनके साथ में पैरेलल में हो गया. तो फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2. वो आ जाएगा, उसके बाद में दोनों कैसे हो जाएंगे, फिर से पैरेलल हो जाएंगे, है ना. तो फिर हम उनका अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शैल फाइंड आउट. तो नाउ लेट्स डू इट. सो नाउ R1 और R2 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड हियर इट विल बी R1 is 4 ohm plus R2 is also 4 ohm and it will be 8 ohm. Okay, 8 ohm. Now these two are in series. तो इनका इक्विवेलेंट हम नेक्स्ट डायग्राम जो आएगा इसका, तो देखिए डायग्राम विल बी लाइक दिस. So this is equivalent resistance RS and this is R3. This is R3. तो देखिए ये हमारा अब डायग्राम बन गया है ना. ये हमारा ये ऐसे रहेगा. तो नाउ यू कैन सी अगेन, नाउ दीज टू आर इन पैरेलल. तो हम जो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने फाइंड किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इससे हमें R3 को पैरेलल मिलेंगे. तो नाउ लिखेंगे RS and R3 in parallel. Okay, so therefore equivalent resistance कितना होगा पैरेलल का, 2 resistors are there, so simply we can go for this formula. It will be RS into R3 upon RS plus R3, और it will be RP is equal to RS कितना है हमारा 8 into 4 upon 8 plus 4. So here it will be 32 upon 12. ओके, यस, इनको सॉल्व कर लेंगे. तो 4 3s and 4 8s. So 8 upon 3. 8 upon 3 means what is the value of equivalent resistance here?
3 to the 6, so 2 and then 2.6. So it is approx equivalent resistance देखिए parallel का आ गया 2.6 ohm. And again you can see here 2.6 ohm, it is smaller than the 4 ohm. It is smaller than the 4 ohm. So this means our answer is correct here. Here when these two are in series, so you can see equivalent resistance is 8 ohm, which is greater than 4 ohm. Okay? So this way we have done this question. It's a very good question. So this question can be asked for how many marks in exam? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए. सो डू प्रैक्टिस दिस. इसमें अलग अलग वैल्यू लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड रिमेंबर डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट हियर. डायग्राम विल हेल्प यू टू डू इट easily and to understand it easily. Okay, so now third question, second question. So this is the second question here. So this is the circuit diagram. So this question has been asked in board exam in 2005. Okay, so here 10 ohm and 20 ohm resistors are in series, 5 ohm and 25 ohm resistors are in series, and they are connected to a battery of 24 volt. And after that, you know, these two are in which combination? These are in parallel combination. तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन शो कर दिया, तो इससे मालूम चल जाता है कि हमारा करंट जो है इट इज बीइंग डिवाइडेड. करंट डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस टू. फिर इन दोनों का फाइंड करेंगे. उसके बाद में क्या होगा? दोनों पैरेलल में होंगे, तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द टोटल करंट इन द सर्किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट डाउन हियर गिवन. तो गिवन लिख लेंगे हम. गिवन में क्या है कि R1 इज 10, R2 इज 20, R3 R4 ये दे रखे हैं. एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 24 वोल्ट. दिस इज गिवन. द टू फाइंड में हमको ये दो चीजें फाइंड करनी है ना. तो नाउ वी प्रोसीड एंड स्टार्ट सॉल्यूशन. Okay, so first we shall find out the equivalent resistance of 10 and 20 ohm. So this is R1, हम इसको मान लेंगे. This is R1, this is R2, and this is R3, and this is R4. तो यहाँ लिखेंगे हम since now R1 and R2 are in series, therefore in equivalent resistance it will be R1 plus R2. It will be 10 plus 20, and here it will be how much? 30 ohm. तो हमारा 30 ohm इनका रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड R4. So we shall write down here. Now R3 and R4 are in series. So therefore equivalent resistance हमारा हो जाएगा. This is R3 plus R4, and it is how much? 5 plus 25, and here it is how much? 30 ohm. तो हमारा दो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 30 ohm है 30 ohm हमारे. ओके, तो 30 ohm आ गया इसका फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन का. दिस इज सेकंड, इसका भी 30 ohm. नाउ दीस टू कैसे हो जाएंगे? ये इनके लिए एक हो जाएगा. तो हम थोड़ा सा डायग्राम इसको चेंज करते हैं, है ना. तो देखिए अब डायग्राम ऐसा हो जाएगा. 10 plus 20 इट इज 30 ohm रेजिस्टेंस आ गया हमारा इक्विवेलेंट. सेम वे 5 plus 25 इट इज 30 now. तो यू कैन सी हियर अगेन. तो यहाँ पे देखिए जो करंट है सेम वे करंट इज बीइंग डिवाइडेड हियर. तो नाउ दीस टू आर इन पैरेलल. तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस टू व्हिच आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अब हम फाइंड करेंगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, सो मे आई रब इट नाउ. इसको नोट कर ले. Yes, okay. So now 30 ohm and 30 ohm are in parallel. So therefore find करेंगे हम equivalent resistance in parallel. So it will be, देखिए ये था हमारा RS1 and this is RS2. तो इनके लिए फाइंड कर लेंगे. This is RS1,
into RS2 upon RS1 plus RS2. So therefore equivalent resistance here it will be 30 into 30 upon 30 plus 30. Okay, so इसको फाइंड करेंगे तो it will be how much? 30 into 30 upon it is 60. So 13 to the 60 and here what do we get? 15. So equivalent resistance of this combination it comes out to be how much? 15 ohm. तो equivalent resistance हमारा 15 ohm आया. अब equivalent resistance हमारा 15 ohm आ गया तो this is the first part हमारा solve हो गया. So this is the answer for the first part. Now we have to find out the current. So total current in the circuit. So equivalent resistance आ गया, potential difference applied, it is given to us. This is 24 volt. So using which formula? Yes, Ohm's law वाला formula use करेंगे. V is equal to IR. We can find out the value of total current in the circuit. Okay, total current in the circuit. अब लिखेंगे since we know that V is equal to IR. V is equal to IR. तो अब देखिए V की वैल्यू हमको गिवन है, तो this is 24 and I we have to find out. R is how much? 15. So therefore I will be how much? 24 upon 15. Yes, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए कितनी वैल्यू आती है देखिए, फाइंड आउट. Yes, 24 by 15. So here 3 5 are 15 and 3 8 are 24. This is 8 upon 5. Yes, अब now इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. Then it becomes very easy. So 8 to the 16 upon 10 is equal to 1.6 ampere. So total current in the circuit I is equal to 1.6 ampere. So total current in the circuit is 1.6 ampere. We can find out the current in 10 ohm and 20 ohm resistance also, in 5 ohm and 25 ohm resistance also. Okay, इस तरह के क्वेश्चन आप आगे और भी करेंगे. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करेंगे. सिंपल टू इजी टू डिफिकल्ट. So note down. So you can do the practice. इसी क्वेश्चन में आप इनकी वैल्यू चेंज कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज कर दें, तो आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट अनदर क्वेश्चन. अगर हम यहाँ R2 की वैल्यू को x मान लें, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 आल्सो एंड बाय टेकिंग द टोटल करंट, कि ये सर्किट में हमको करंट दिया है. तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. So now इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं. तो these two parts were asked in book. बुक में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. अगर हम इसमें थर्ड पार्ट अपनी तरफ से जोड़ दें, ओके, कि हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू R1 एंड R2 एंड हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू R3 एंड R4, तो कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट थिंक कैसे फाइंड करेंगे, है ना. ओके, कर सकते हैं. यस, तो इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन हो जाएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो R1 एंड R2 में कितना करंट है एंड सेम वे R3 एंड R4 में कितना करंट है. टोटल करंट कितना है सर्किट में? दिस इज 1.6 एम्पियर. दिस वी हैव कैलकुलेटेड, है ना. तो इसमें हमें फाइंड करना है R1 एंड R2 में. तो देखिए R1 एंड R2 कैसे हैं ये? दीज आर इन सीरीज. तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 20 30 ओम है. एंड दीज टू, ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच इज हाउ मच? 24 वोल्ट. तो हम सिंपली वी कैन फाइंड आउट कि इसमें कितना करंट होगा. ओके, शुरू करें. यस, सो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 प्लस 20 30 ओम आ गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना है? दिस इज 24. तो हियर करंट I इज डिवाइडेड इनटू, ये जो I हमारा 1.6 था, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I1 एंड हियर दिस इज I2. ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे I1, इन दोनों में से कितना करंट जा रहा है टोटल.
तो इसलिए हो जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, V अपॉन R एस हमने जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, दिस इज I1। So therefore it will be how much? I1 is equal to V is 24 upon RS, it is 30। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? This is 0.8 एम्पियर। So I1 is how much? 0.8 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया पासिंग थ्रू रेजिस्टर R1 एंड R2। R1 एंड R2 टोटल दोनों में से इतना करंट पास होके जा रहा है। ठीक है, सेम वे वी कैन फाइंड आउट करंट पास की वैल्यू जो है I2 कितनी है, 5 और 20 ओम से। तो सिमिलरली so now here RS will be equal to R3 plus R4, it is 5 plus 25 is equal to 30 ohm। okay, therefore I2 will be how much? Similarly वही फार्मूला यूज करेंगे, V upon R, V is 24 upon 30 is equal to 0.8 एम्पियर। सो I2 की वैल्यू आ गई हमारी 0.8 एम्पियर। ओके, सो I1 एंड I2 इन दोनों को अगर हम सम करें तो दिस इज अगेन हाउ मच? 1.6। तो देखिए टोटल करंट हमारा I था, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू कितनी है? 1.6 है। I1 की वैल्यू 0.8 plus I2 0.8, it is again 1.6। So this means our answer is correct। So 0.8 ampere current is passing through 5 ohm and 25 ohm and 10 ohm and 20 ohm resistor। Okay, any problem here? So after this you can find out the potential difference across 10 ohm resistor and 20 ohm resistor also, है ना? ये भी फाइंड कर सकते हैं। These two are in series, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा I की वैल्यू आगे कितनी है? 0.8। तो 0.8 into 10, उससे हमें आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 across R1 and similarly we can find out V2 across R2। ठीक है, and that will be इन दोनों का सम कितना होगा? V1 plus V2 अगर हम फाइंड करें तो that will be equal to 24। Try to do it at home, इसको खुद करने की कोशिश करेगा। नहीं आएगा तो आप लिखिएगा चैट बॉक्स में, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यस। तो लास्ट पार्ट जो है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, सिमिलरली V3 एंड V4 का वैल्यू कितना होगा, दिस वी शैल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशन। तब तक आप इसको सॉल्व करके रखेंगे। यस, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडे सेशन, क्योंकि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हमने किए हैं, है ना? हमने मींस हम लोगों ने मिलकर किए हैं। एंड नाउ यू कैन डू more numericals at home. Thanks to all of you.